myself Mansi Jangda. I am here to make your biological concepts easier. Now, in this session, let's talk about the reproductive health. Reproductive health, in short. Firstly, what do you mean by the term health? Health, according to the WHO, it is a complete state of social, mental, and physical well-being. Social, mental, and physical well-being. सो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ बेसिकली सोशली, मेंटली और फिजिकली क्या होनी चाहिए, फिटनेस जो है वही बंदा क्या है, हेल्थी है. नाउ इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स इट इज द वेल-बीइंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वेल-बीइंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Reproductive organs in the aspect of physical aspect, emotional aspect, behavioral aspect, and the last one is social aspect. So जो भी person physically, emotionally, socially और behaviorally fit है, stable है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, reproductively healthy कह सकते हैं. So reproductive health includes the well-being of reproductive organs in the aspects of physically, emotional, behavioral and social aspects. So reproductive health पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके दौरान जो भी मेजर्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम यूज करेंगे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन लेवल. जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलेशन दिन बर दिन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है एट एन अलार्मिंग रेट. सो फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो खत्म ना हो, इसीलिए हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है. सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ एक मेजर्स बनाए गए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. इंडिया is the first country to initiate the family planning program in the year 1951 according to the RCH. RCH stands for the reproductive and child health care program. सो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मेजर टास्क रखे गए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, जिसमें लोगों को अवेयर किया गया, एजुकेशन दी गई, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताया गया और प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, मदर केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इन सभी मेजर्स के बारे में लोगों को जागरूक किया गया. तो ये आरसीएच प्रोग्राम के अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके. क्योंकि जो पॉपुलेशन लेवल था 1900 के अंदर दैट वाज 2 बिलियन एंड फ्रॉम द 1900 टू द 2000 it approaches approximately to the 6 billion. That was very increasing rate of the growth. So we have to control this alarming rate due to the sufficient quantity of the food resources, they are very limited. अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो नेक्स्ट हम यूज करेंगे दे आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया गया, यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेसिकली यूज किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी को डिले कर सके या फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया गया. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? An ideal contraceptive must be user friendly, that can be used by the user by itself. So it must be user friendly, no side effect, and the efficiency of the contraceptive is high, means it is highly efficient and it does not interfere with the sexual desire of the user. So these are some characteristics which are required for an ideal contraceptive. So the contraceptive methods include basically natural method, next one is barrier method, and the third one is oral contraceptives.
So first is natural method. Natural method means without any use of the other medicines or injectables. They are present in the nature or they can be used naturally. So these natural method includes the periodic abstinence method. Second one is lactational amnesia. And the third one is withdrawal or coitus interrupts. Withdrawal and coitus interrupts. These are the methods which come under the natural method. The main principle for the natural method is to prevent the physical meeting of the sperm and ovum to prevent them from fertilization. So they are helpful to prevent the meeting of sperm and ovum. फर्स्ट इन द पीरियोडिक अब्स्टिनेंस. पीरियोडिक अब्स्टिनेंस के दौरान जो फीमेल पार्टनर है या फीमेल के अंदर जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है, नॉर्मल फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस है दैट इज अप टू 28 डेज. 28 डेज के दौरान अराउंड द मिड ऑफ द साइकिल मीन्स 14 डे ओव्यूलेशन रेट सबसे हाई होता है. मीन्स देर आर 100% चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो द मेल पार्टनर स्किप फ्रॉम द कोइटस और द कपल skip the coitus from the 10 to the 17 day during the menstrual cycle. So इसीलिए इसको बोला गया abstinence. Abstain means avoid. So the couple should avoid the coitus during the 10 to the 17 day of the menstrual cycle in which ovulation period is to be expected. क्योंकि यही 100% fertile period कहा जाता है. इस दौरान ओवम रिलीज होता है और अगर स्पर्म वहां पे पहुंचता है तो स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फर्दर प्रोसीड करेगी. सेकंड मेथड इज लैक्टेशनल अमनेरिया. लैक्टेशनल अमनेरिया के अंदर सबसे पहला लैक्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग. लैक्टेशन स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग व्हाइल दिस अमनेरिया स्टैंड्स फॉर द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस अमनेरिया स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब ये क्या होता है? इसके दौरान जब भी फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अप टू द 6 मंथ मिल्क फॉर्मेशन होगी. मिल्क फॉर्मेशन इज डन बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड दिस प्रोलैक्टिन इज एट हायर रेट ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन पीरियड. सो दिस प्रोलैक्टिन गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक टू द एफएसएच. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देगा जिसकी वजह से एफएसएच जो अपना फंक्शन करता है टू इंड्यूस द ओव्यूलेशन वो उसे क्या करेगा? इनहिबिट करेगा. सो प्रोलैक्टिन क्या करता है? एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि ओव्यूलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर सके. इसीलिए लैक्टेशन के दौरान या फिर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस एब्सेंट होती है और ओव्यूलेशन उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, इसीलिए प्रेगनेंसी को उस टाइम पे डिले या फिर स्टॉप कर सकते हैं. थर्ड मेथड इज विड्रॉल और द कोइटस इंटरप्ट मेथड. In this method, the male partner withdraw his copulatory organ or we can say penis from the female reproductive tract before the ejaculation. Ejaculation से पहले मेल पार्टनर अपने copulatory organ को रिमूव कर लेता है. So this is about withdrawal or the coitus interrupt method. These are the three methods which come under the natural method of contraception. Now the next method is barrier method. The principle for the barrier method is to prevent the physical meeting of sperm and ovum. Sperm और ovum को physical meet से क्या करना है? रोकना है. Same principle जो natural method का था वही barrier method में. So in the barrier method there is use of condoms and these condoms are basically rubber sheath which are used by the male to cover the penis and by the female to cover the vagina or the cervix. Vagina और cervix को cover करने के लिए use किए जाते हैं female condoms and male condom is used to cover the penis. Advantage for using the condom is to prevent from the STDs. STDs basically stands for the sexually transmitted disease. So, firstly, they prevent the conception. Second, they prevent from the STDs. Third, these condoms are user friendly.
these condoms are user friendly and they are disposable, means they can be used only once, they cannot be used twice, or they are reusable, not they are not reusable. So these comes under the barrier method. So this is about first barrier method. Now the next method is the use of IUDs. IUDs. IUD stands for the intrauterine devices. Intrauterine devices. This intra word stands for within, means ये वो डिवाइसेस हैं जो कि यूट्रस के अंदर फिट की जाती हैं बाय द एक्सपर्ट नर्सेस और बाय प्रोफेशनल डॉक्टर्स. These devices can be fitted within the uterus to prevent from the pregnancy. So there are some IUDs which are used to delay or to prevent the pregnancy. So IUDs are of type. First one is hormone releasing IUD. Hormone releasing IUD. Second one is non-medicated IUD. Non-medicated IUDs. And the third one is copper releasing IUD. Copper releasing IUD. Do you know what is the mode of action of using these IUDs? The basic principle for using these IUDs is to make the cervix fluid viscous to prevent the sperm entry or make the uterus unstable for the process of implantation. ताकि यूट्रस के अंदर implantation यानी कि एम्ब्रियो अटैचमेंट की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसीड ना हो, और दूसरा सर्विकल फ्लूइड विस्कस हो जाए ताकि स्पर्म एंटर ना कर सके, इसीलिए आईयूडीज को यूज किया जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया बाय द वुमेन टू स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रंस. सो फर्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. प्रिंसिपल इज सेम, to make the cervix unstable for the implantation. Example is LNG-20. Second one is non-medicated IUD. For example, lipase loop. This lipase loop is none of more use because it causes the ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy means नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो एम्ब्रियो की अटैचमेंट होती है यूट्रस के अंदर, बट ड्यूरिंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्ब्रियो अटैच होता है फैलोपियन ट्यूब या दूसरे ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से फीमेल के सर्वाइवल को थ्रेट होता है, इसीलिए लिपेज लूप को यूज नहीं किया जाता. सो दिस इज अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. दिस कॉपर रिलीजिंग आईयूडी रिलीज द कॉपर आयन. What is the function of this copper ion? This copper ion suppress the sperm motility. ये sperm की मूवमेंट को, मोटिलिटी को कम कर देता है, क्योंकि एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स की नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, 40% विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए. अगर मोटिलिटी कम होगी तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे. सो दिस कॉपर आयन यूजफुल टू सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. These are the type of IUDs, intrauterine devices. Now the last method is oral contraceptive method. Oral contraceptive method includes the use of tablets or pills. It includes tablets, and these tablets include progesterone hormone or the combination of progesterone and estrogen hormone. The combination of progesterone and estrogen is used during the emergency contraceptive. During the emergency contraceptive, such as in case of rape victims or by the use of unsafe sex protection. So progesterone and estrogen combination is used up to the 72 hours of coitus to prevent from the conception or to prevent the pregnancy chances. These tablets can be used. While these tablets are formulated by the hormones, now the CDRI, which stands for the Central Drug Research Institute in Lucknow, they form a non-steroidal preparation. They make a non-steroidal preparation which is named as Saheli.
And the advantage of this Saheli is, firstly, it is non-steroidal, means it contain no additional hormones. It contain no hormones. Second one, this Saheli is once a week pill. Once a week pill. So this is the main advantage of using this Saheli pill. So this is about oral contraceptive method. इन्हीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करके प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं या फिर चिल्ड्रंस के बीच में स्पेस कर सकते हैं. सो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों जरूरी थे? ताकि जो भी पॉपुलेशन रेट एक इतना अलार्मिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है उसे हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज MTP. MTP stands for medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy means it can also say that it is abortion. So MTP को गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया इन द ईयर 1971. MTP क्यों हुआ? ताकि जो भी बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसे हम क्या कर सके, अबॉर्ट कर सके. इसीलिए MTP को इम्प्लीमेंट किया गया. MTP stands for medical termination of pregnancy, legalized in the year 1971. माना जाता है कि MTP is safe during the 3 months period. 3 months, or we can say that during the 12 weeks time period it is safe. And MTP Act 2017 के अकॉर्डिंग 3 months तक जो भी अबॉर्शंस या MTP परफॉर्म किए जाते हैं दे आर अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ वन डॉक्टर. While the abortion which are performed above the 12 weeks time period or above the 3 months time period, they are performed under the recommendation of 2 doctors. This is about MTP Act 2017. तो MTP बेसिकली 1971 के अंदर लीगलाइज किया गया था ताकि जो भी बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर बच्चे की वजह से उसकी मदर की हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम में है या फिर उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए MTP को परफॉर्म किया गया. MTP एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग अगर 3 months तक अबॉर्शन किया जा रहा है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेफ पीरियड. वाइल अगर MTP 3 months के बाद में या फिर 12 weeks के बाद अगर परफॉर्म करते हैं दैट इज अनसेफ एंड इट इज परफॉर्म्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ 2 doctors. नाउ next topic is infertility. इनफर्टिलिटी बेसिकली क्या होता है? कुछ एक कपल्स ऐसे हैं जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी पेरेंट्स नहीं बन सकते. सो द रीजन लाइज इन द मेल पार्टनर और इन द फीमेल पार्टनर. सो इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए यानी कि पेरेंटहुड के लिए जो एक प्रोग्राम यूज किया गया दैट इज ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. अब इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो टेक्निक यूज की गई दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में मेल पार्टनर से स्पर्म और फीमेल पार्टनर से ओवम को कलेक्ट किया जाता है एंड दे आर मेटेड इन द लेबोरेटरी कंडीशन. इनको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर क्या कराया जाता है? मेट कराया जाता है. अब लेबोरेटरी कंडीशन में जब दोनों की फर्टिलाइजेशन होएगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट. अब बेसिकली जाइगोट फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, मोरूला, ब्लास्टुला, देन इसके बाद क्या बनता है? फीटस. सो जाइगोट या फिर जो अप टू द ब्लास्टोमियर्स की जो स्टेज होती है
उस दौरान इसको हम फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट स्टैंड्स फॉर द जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मींस इंट्रा स्टैंड्स फॉर विद इन, किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, मतलब कि वुमेन की ओविडक्ट के अंदर अगर जाइगोट अप टू लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स और इक्वल टू 8 ब्लास्टोमियर्स है तो उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकेंडली, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है जाइगोट तो उसे यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मीन्स इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर की जो भी जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है उसे यूट्रस के अंदर फिट कर दिया गया। अब क्या होता है, अगर फीमेल की ओवरी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, मीन्स ओवम को रिलीज नहीं कर सकती, बट एप्लीकेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, यूट्रस बिल्कुल फिट है, ओवरी से ओवम रिलीज नहीं हो रहा, तो इस केस में जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज गिफ्ट टेक्निक, गिफ्ट, एंड दिस गिफ्ट स्टैंड्स फॉर द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर उन फीमेल्स के लिए है जो कि अपना ओवम को रिलीज नहीं कर पाती बट यूट्रस और प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं, यूट्रस की कंडीशन सुटेबल होती है इम्प्लांटेशन के लिए। सो ऐसे फीमेल्स के अंदर गैमेट्स जो है यानी कि ओवम को फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं गिफ्ट टेक्निक। नेक्स्ट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI के अंदर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर एग जो या ओवम है या एग है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, और जैसे ही ये फ्यूज होगा जाइगोट बनेगा तो उसे यूट्रस के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा स्टैंड्स फॉर विद इन एंड साइटोप्लाज्म किसका, एग का। सो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे ICSI भी कहते हैं। सेकंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन मेल्स के लिए किया जाता है विच आर नॉट कैपेबल ऑफ नॉर्मली इंसेमिनेशन, और वी कैन से दैट the sperm count or the sperm motility is very low in the male partner. So उनके लिए क्या यूज किया जाता है, artificial insemination. So artificial insemination के अंदर जो भी sperm होता है उसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर with the help of other method हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो that is also known as IUI, intrauterine insemination। कि intrauterine insemination का मतलब क्या है, जो भी जाइगोट और एम्ब्रियो है उसे यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं, या फिर स्पर्म को यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कराते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कराते हैं। तो दैट इज अबाउट IUI। सो दीज आर द ART assisted reproductive technology which makes a couple fertile. So in vitro fertilization, gift, gamete intrafallopian transfer, GIFT, zygote intrafallopian transfer, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, AI stands for artificial insemination, IUI stands for the intrauterine insemination. These all come under the ART assisted reproductive technology. सारे के सारे जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो इसीलिए बहुत कम लोग इन्हें क्या कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द पेरेंटहुड दैट इज एडॉप्शन। सो एडॉप्शन मस्ट बी द फेवरेबल मेथड टू इनिशिएट द पेरेंटहुड। सो दिस इज अबाउट इनफर्टिलिटी। वन टॉपिक इज amniocentesis. Amniocentesis. This amniocentesis is a test
used to detect genetic disorder। जो भी बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस टेस्ट इसे हम कह सकते हैं। दिस इज अम्नियोसेंटेसिस। अम्नियोसेंटेसिस में बेसिकली अब मदर की वॉर्म यानी कि यूट्रस के अंदर बच्चा यहाँ पे क्या करता है, डेवलप करता है। इसके बाहर जो ये लेयर प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं अम्नियोन। अब इसके अंदर जो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि बच्चे को किसी भी मैकेनिकल शॉक से या फिजिकल शॉक से बचाता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोसेंटेसिस के दौरान क्या किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, फिर इसके बाद इसको डायग्नोज किया जाता है। इसका डायग्नोज क्यों किया जाता है, ताकि इसमें जो भी फीटल सेल्स हैं उन फीटल सेल्स को डिटेक्ट करके हम पता लगा सके कि बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर नहीं है। मीन्स टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। सो इसी टाइप की एब्रेशंस या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट जो वो किया जाता था। लेकिन इसका मिसयूज क्या किया गया, क्योंकि यहाँ से अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटल सेल्स हैं, सो इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न। अब इसी क्रोमोसोमल पैटर्न का यूज करके लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन करना शुरू किया। अगर बच्चे का सेक्स डॉटर यानी कि XX कैरी कर रहा है तो फीमेल फिटिसाइड के केसेस जो वो बढ़ गए थे, इसीलिए इसको जो है वो बैन कर दिया गया। सो अम्नियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया गया, क्योंकि इसका मिसयूज क्या किया गया था, फीमेल फिटिसाइड। सो दिस इज अबाउट एमनियोसेंटेसिस। सो दीज आर द important topics which come under the reproductive health chapter. Last one is STDs, sexual transmitted disease. Sexually transmitted disease basically बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोन की वजह से हो सकती है, जिसमें से जो इनक्योरेबल डिजीज है वो है एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड द लास्ट वन इज जेनिटल herpes. These are incurable disease at the last stage. So ये 3 डिजीज बेसिकली क्या है, इनक्योरेबल है, इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। इसलिए हमें पहले ही सावधानी रखनी चाहिए, हमें अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए फ्रॉम दीज एसटीडीज। नाउ द नेक्स्ट वन, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है एसटीडीज, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस या फिर प्रोटोजोन की वजह से हो सकती है। सो एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं या फिर यूज ऑफ कॉन्डम, ये इस तरीके से जो वो सेक्सुअली कांटेक्ट जो है उसे क्या करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। सो एसटीडीज से इस तरीके से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। सो दिस चैप्टर इंक्लूड एमटीपी, इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एंड द लास्ट वन इज about the infertility techniques. This is about reproductive health. So this is very important to control the population size. Population size को control करने के लिए, to provide the sex education, to control the population or the sex related issues. So this is about reproductive health. Thank you.